फाइन, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, और बता देना, बिकॉज आई डेंट नो एक्चुअली, आई वाज गोइंग टू द क्लास में पढ़ाते जा रहा था। ये पढ़ा दिया था मैंने आप लोग को। ओके, एंड ये दोनों कर्व्स के बारे में मैंने बता दिया था। आई आस्क्ड यू, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, राइट? हेलो, विच वन इज फॉर 10 volts एंड विच वन इज फॉर 3 volts? Did I ask you this question? Hello. Okay, fine. So base width. Okay, fine. Base width modulation. I didn't speak about anything. Right. Fine. ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। सो दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन फॉर, ये जो ब्लू कलर का जो वेवफॉर्म है, दिस इज फॉर 3 volts के लिए, ठीक है। एंड नाउ आई विल बी इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज, आई विल बी इंक्रीजिंग दिस वीसीबी। 10 volts करेंगे, या तो मैं उसको रिड्यूस करूंगा लेस देन 5 volts। वन इज 10 volts एंड वन इज फॉर 3 volts, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड दिस कि when VCB is increasing or when VCB is decreasing, whether my curve will be shifting towards the right or whether my curve should be shifting towards the left, this is what I need to understand, because curve का जो shape होगा वो same ही होगा, curve का जो shape होगा that will be same, either it will be shifting towards right or left, ठीक है। So to understand that, what is that I need to understand first is base width modulation. Base width modulation, also called as the early effect. Sometimes in the examination you might be asked this question, पूछा जा सकता है आपसे कि what is called as base width modulation और early effect क्या होता है, ठीक है। So what is that I've taken here is emitter, base and collector मैंने यहाँ पे लिया है, emitter, base and collector। One second. Okay. So this is what we have, emitter, base and collector. So actually अगर यहाँ पे देखा जाए तो I have drawn the depletion width also. Depletion region मैंने यहाँ पे draw किया, किसके बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस एंड कलेक्टर के बीच में मैंने यहाँ पे depletion region यहाँ पे मैंने draw किया। If I talk about the actual width of the base, अगर actual width की हम बात करें, starting from this point to this point is the actual width of the base. 3 layers होते हैं हमारे पास, emitter, base and collector. What is the actual width of the base? From this point to this point is the actual width of the base, and after that we have our collector. Okay, so when I'm increasing this voltage, for suppose मैं इस voltage को बढ़ाता हूँ, actually this is in reverse bias में है already, और यहाँ पे एक चीज आप notice कर सकते हैं, the penetration of this depletion region is more into your base when compared to my collector, right? This is the point that you need to understand. What is that point is, the penetration of this depletion width is more into your base when compared to my collector. When compared to my collector देखा जाए तो penetration किसमें ज़्यादा है, base में बहुत ज़्यादा है, right? So what could be the reason for this? Reason क्या हो सकता है इसका कि it is more inside your into your base when compared to my collector. Depletion width की अगर हम बात करें तो exactly यही होता है, right? If you have a PN junction, अगर आपके पास एक PN junction है, right? So this is nothing but my positive ion and this is nothing but my negative ion. तो इसको हम क्या बोलते हैं? This is called as the depletion width बोलते हैं. This is called as the depletion width. And this is equal into p side and this is equal into n side, क्योंकि दो, right, दोनों में equally ये penetrate होता है p side और n side में। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं, so what is happening is it is more into your base when compared to my collector. क्या reason हो सकता है इसका? What could be the reason? I spoke about this reason. Sorry. Yes, doping. Yes, well, very good. Answer is doping. While discussing about the Zener diode, I have discussed about this point. इस point के बारे में discuss किया था, because Zener diode is possible only because of this doping. Doping की वजह से ही हमारा Zener possible होता है. Because if you talk about the basic difference between normal diode and the Zener diode, what is the basic difference? Zener is heavily doped. Zener is heavily doped when compared to my
नॉर्मल डायोड, जीनर इज हेवीली डोप्ड व्हेन कंपेयर्ड टू माय नॉर्मल डायोड। तो इसलिए हमने देखा होगा जीनर में, इफ आई एम अप्लाइंग द सेम वोल्टेज, इफ आई एम अप्लाइंग द सेम रिवर्स बायस वोल्टेज इन द जीनर एंड द डायोड, नॉर्मल डायोड, तो जीनर का जो डिप्लीशन विड्थ होता है वो बहुत कम होता है। जीनर का जो डिप्लीशन विड्थ होता है बहुत कम होता है व्हेन कंपेयर्ड टू माय ऑर्डिनरी डायोड। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी स्मॉल विड्थ, व्हाट इज दैट आई गेट इज आई गेट very high electric field, very high electric field, right? So that is what we have seen in the Zener. Zener में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। तो सिमिलर फिनोमेना यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो बता सकते हैं व्हाट आर द डोपिंग लेवल्स ऑफ दिस एमिटर बेस एंड कलेक्टर? व्हाट अबाउट द डोपिंग लेवल्स ऑफ दिस एमिटर बेस एंड कलेक्टर? एनीवन? डोपिंग लेवल्स क्या होंगे इनके? सर एमिटर हाईली डोप्ड होता है, बेस Yes, it is. बेस very lightly doped and collector mildly doped. Yes. Yes, it is lightly doped, and this is nothing but moderately doped. Yeah. So my emitter is heavily doped, base is lightly doped, and this is moderately doped. Okay. The reason for this depletion region penetrating more into base is nothing but it is lightly doped when compared to my collector. Collector के comparison में मेरा base होता है बहुत ही lightly doped होता है. That is the reason it penetrates more inside your base region. ठीक है. So now, what is the effective width that is available? What is the effective width that is available? This is the actual width. This is the actual width of the base. And what is the actual base that is available between emitter and base? Emitter और base के बीच में कितना width available है? This is the width that is available, and this is called as the effective width of the base. One second. This is the effective width of the base that is available between base and emitter. समझ में आ रहा है? एक को हमने रिवर्स बायस कर दिया तो उसकी वजह से ये जो उसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर बढ़ रहा था, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो इफेक्टिव विड्थ जो होगा, इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज हो गया। किस किस के बीच में? एमिटर और बेस के बीच में जो इफेक्टिव विड्थ जो था दैट स्टार्टेड रिड्यूसिंग। इफ आई स्टिल इंक्रीज द वोल्टेज, व्हाट विल हैपन? दिस डिप्लीशन लेयर, ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसका विड्थ और भी इंक्रीज होगा। जब इसका विड्थ और भी इंक्रीज होगा, ये जो इफेक्टिव विड्थ है वो और भी कम होते चले जाएगा, वो और भी कम होते चले जाएगा। एंड इफ दिस इफेक्टिव विड्थ इज रिड्यूसिंग, व्हाट विल हैपन? बिकॉज यही होता है, राइट? अगर मैं VCB को मैंने पहले क्या रखा था, आई मेड इट 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे बेस और एमिटर के बीच में मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने क्या बोला, VCB को मैं 10 वोल्ट्स कर रहा हूँ, VCB को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 वोल्ट्स कर रहा हूँ। व्हेन VCB इज 10 वोल्ट्स, क्या होगा? दिस इफेक्टिव विड्थ विल स्टिल गो डाउन, दिस इफेक्टिव विड्थ विल स्टिल गो डाउन। ओके, ये इफेक्टिव विड्थ अगर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से मुझे व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई विल फेस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इफेक्टिव विड्थ? एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो व्हाट वी नो इज माय बेस इज लाइटली डोप्ड, राइट? माय बेस इज लाइटली डोप्ड। ओके, सो माय बेस इज लाइटली डोप्ड। ओके, अगर ये इफेक्टिव विड्थ कम हो जाएगा, द रिकॉम्बिनेशन विल बी वेरी स्मॉल। द रिकॉम्बिनेशन नथिंग बट एक्चुअली होता है क्या, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एमिटर से, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कहाँ से? एमिटर से, वो या तो ये रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन होंगे, एंड रेस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्शन। इज दैट क्लियर? Is this clear? The electrons that are coming from the emitter, first they will recombine, and rest remaining all the electrons will enter into your collector region. We know that, right? तो यहाँ पे अगर effective width कम हो जाएगा, the number of holes that are available for recombination will reduce. जो recombination के लिए holes मेरे पास available होंगे वो कम हो जाएंगे। Is that clear? Recombination will go down. जो मेरा रिकॉम्बिनेशन है वो कम हो जाएगा, इफेक्टिव विड्थ अगर मेरा रिड्यूस होता है तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। अगर रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू माय एमिटर करंट विल इंक्रीज because majority of electrons will be participating in the conduction. Majority of the electrons will be responsible for this emitter current because only few electrons will be recombining. बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिकम्बाइन करेंगे, एंड उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्शन। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, जब मैं इस रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहा हूँ, 5 वोल्ट से मैंने इसको 10 वोल्ट्स किया, जब मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, व्हाट विल हैपन? दिस डिप्लीशन रीजन विल पेनिट्रेट मोर इनटू योर बेस। जब ये ज्यादा पेनिट्रेट करेगा बेस में तो व्हाट विल हैपन? इफेक्टिव विड्थ कम हो जाएगा। जब इफेक्टिव विड्थ कम हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन गिर जाएगा।
जब रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, what will happen? Emitter current will automatically increase. Emitter current will automatically increase. So the point that you need to understand is, if this VCB is increasing, what will happen to my emitter current? Emitter current will automatically increase. So this is the point you need to understand. As my VCB is increasing, my emitter current will increase. And if my VCB is decreasing, अगर 5 वोल्ट से 3 वोल्ट्स हो गया, अगर 5 वोल्ट से 3 वोल्ट्स हो गया, so what will happen? When in comparison to my 5 volts, the effective width available for this 3 volts will be more. Effective width जो available होगा 3 volts के लिए वो ज़्यादा होगा in comparison to my 5 volts. So उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो emitter current होगा that will reduce. My emitter current जो होगा वो decrease हो जाएगा. My emitter current will reduce. Is that clear? So what is the point you need to keep in mind? If my VCB is increasing, my emitter current will increase. If my VCB is decreasing, my emitter current will reduce. So that is the point you need to understand. And this is nothing but, this phenomenon is nothing but my base width modulation. Base width modulation, because with the change in this collector and base, with this change in this voltage, what is happening is the effective width that is available is been changing. The effective width that is available is changing with respect to this voltage. So that is nothing but called as the base width modulation. Base width modulation. Okay. तो अभी मुझे बताइए, for this 10 volts and 5 volts के लिए तो मैंने ड्रॉ कर दिया, जो ब्लू कलर का जो वेव फॉर्म है that is for 5 volts. Okay. Now I am changing the voltage to 10 volts and I am changing the voltage to 3 volts. For these two different voltages, what is the curve that I will get? Green color या red color? Green color किसके लिए? 5 volt 3 volts के लिए या 10 volts के लिए? या रेड कलर? बताइए आपको. I have given is a reference. Reference मैंने दे दिया आप लोग को, that is for 5 volts. And after that I made the voltage to 10 volts and एक बार मैंने voltage किया 3 volts. तो इन दोनों केस में जो मेरे पास कर्व आएगा कौन सा आएगा? Which one will represent 10 volts and which one will represent 3 volts? I have two curves. One is green color and one is red color. Yes, बताइए. So 3 volts green color represent करेगा. 3 volts green color को represent करेगा. Okay, fine. Okay, and 10 volts represent करेगा red color. Can you give me the reason? कैसे? Reason बता सकते हैं इसके लिए कैसे? मैंने बोला था आपको, अगर कि हमारा voltage increase होगा, if my VCB increases, what will increase? My emitter current will increase. Okay, and if my VCB decreases, my emitter current will decrease. So this is the point I told you. Okay, इस point को ध्यान में रखते हुए बताइए. सर VCB डिक्रीज हुआ है तो एमिटर करंट भी डिक्रीज होगा. एमिटर करंट भी डिक्रीज होगा. फाइन, लेट मी डू वन थिंग. मैं आपके लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. उस रेफरेंस लाइन को आप देख के मुझे बताना. ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, एक पर्टिकुलर VB पे मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया. For that voltage, these are the currents that are available. This is nothing but emitter current 1, emitter current 2 and emitter current 3. अब मुझे बताइए, now it's थोड़ा सा सिंपल आसान हो गया, इसको आप देख के बता सकते हैं आप. एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VB मैंने ले लिया है. एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VB लेके मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया. उस रेफरेंस लाइन से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि एमिटर करंट किसमें ज्यादा है किसमें कम है. सो ग्रीन वाला 10 वोल्ट के लिए. यस, द आंसर इज दिस इज फॉर 10 वोल्ट्स. ये जो है दिस इज फॉर 10 वोल्ट्स. ठीक है, एंड ये जो रेड कलर का जो है दिस इज फॉर 3 वोल्ट्स. दिस इज फॉर 3 वोल्ट्स एंड दिस इज फॉर 10 वोल्ट्स. एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दिस इज नथिंग बट द एमिटर करंट सबसे ज्यादा है 10 वोल्ट्स के लिए. उसके बाद में 5 वोल्ट्स के लिए कम है, 3 वोल्ट्स के लिए सबसे कम है. Exactly. So just remember one thing. Just remember one thing. This is the point you need to remember, that VCB increase होगा तो IE increase होगा and VCB decrease होगा तो IE decrease होगा. And what is the explanation to this statement? This is the explanation. Base width modulation is the explanation, or else early effect. Right? In the examination you will simply give a question, early effect को explain करो या base width modulation को आप explain करो. ठीक है? Using that explanation, this graph should be explained. Is that clear?
यहाँ पे देखा जाए तो 10 वोल्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा एमिटर करंट है यहाँ पे, उसके बाद में आपको 5 वोल्ट्स के लिए मिलेगा, एंड उसके बाद में आपको मिलेगा 3 वोल्ट्स के लिए। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था, एंड दिस वाज नथिंग बट योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था। यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है अबाउट द सैचुरेशन रीजन का आपको ध्यान रखना है। ये सैचुरेशन रीजन आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद मिलेगा, एंड क्यों मिलेगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट पॉइंट ऑल्सो। ओके, सो the next topic is biasing. तो व्हाट इज बायसिंग? ठीक है, अभी तक हम सिंपली ये बोल रहे थे व्हाट इज दैट योर सेंट्रल नॉइस, कि हमारा जो दिस इज नथिंग बट माय कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज नथिंग बट माय बेस टर्मिनल, एंड दिस इज नथिंग बट माय एमिटर टर्मिनल। सो दिस आर द थ्री टर्मिनल्स वी हैड, राइट? एंड हमको ये चीज पता था कि मेरा जो बीजेटी है दैट कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर, that can act as an amplifier, or that can act as a switch, right? My BJT can act as an amplifier or it can act as a switch, and किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है आपके बायसिंग पे। किसके बायसिंग पे? आपका जो एमिटर जंक्शन है और आपका जो कलेक्टर जंक्शन है, इन दोनों बायसिंग पे ही डिपेंड करता है वो, कि ये स्विच की तरह एक्ट करेगा या ये तो फिर एम्पलीफायर की तरह एक्ट करेगा। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन the biasing of this emitter junction and collector junction. ठीक है, till now we didn't discuss about how to establish this biasing, nothing but इसको हम कैसे bias करेंगे, ठीक है, depending upon my requirement। अगर मैं चाहता हूँ इसको forward bias करना है तो मुझे क्या क्या चीजें करनी होंगी, and what is the circuit that I need to follow over here। ठीक है, अगर हम बीजेटी की बात करते हैं, if you talk about BJT analysis is classified into two types, one is AC analysis and one is DC analysis। दो एनालिसिस होते हैं बीजेटी में, ठीक है। अभी तक जो भी हमने एनालिसिस किया दैट वाज एन AC DC एनालिसिस, ठीक है। AC एनालिसिस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो बायसिंग जो पार्ट आता है, बायसिंग नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज एस्टैब्लिशिंग योर ऑपरेटिंग पॉइंट। बायसिंग इज आल्सो नथिंग बट कॉल्ड एज एस्टैब्लिशिंग योर ऑपरेटिंग पॉइंट। व्हेन आई से ऑपरेटिंग पॉइंट नथिंग बट what is the voltage and what is the current, I'll talk about that, ठीक है। if you remember one thing, जब हमने डायोड में पढ़ा था, we discussed something about the load line, we discussed something about the load line के बारे में डिस्कस किया था, जब हमने डायोड के बारे में डिस्कस किया था। and what was the role of a load line? लोड लाइन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता था? लोड लाइन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता था अबाउट द क्वेश्चन पॉइंट, क्यू पॉइंट, ठीक है। एंड वहाँ व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दैट क्यू पॉइंट, what is the voltage across the diode and what is the current that is flowing through the diode for the particular circuit configuration. Is that clear? That is nothing but the operating point. That is nothing but called as the operating point. तो यहाँ पे जो biasing होगा, that is also nothing but to establish an operating point here. To establish an operating point. Establish an operating point मतलब कि मेरा जो operating point है active region में होगा, saturation में होगा या cut off region में होगा. Is that clear? So that is what we will see in the next class about this biasing. You have basically three types of biasing: fixed biasing circuit, emitter biasing circuit, and potential divider and all these things. ठीक है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज इफ आई स्टार्ट नाउ आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट, इवन एक सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का। ओके, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, देयर समथिंग कॉल्ड एज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। व्हिल डिस्कसिंग अबाउट द एसी सर्किट, एसी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, एसी इक्विवेलेंट मॉडल के बारे में, उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दैट विल बी इजी एट दैट टाइम टू अंडरस्टैंड। उस टाइम पे विल बी टेकिंग एन एप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड दैट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बस आप इन दोनों का देख लेना, वन इज कॉमन कलेक्टर एंड सॉरी कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर। ओके, so by today evening or tomorrow morning, our assignment is almost ready, आधा complete कर लिया मैंने। I'll be adding few more questions and I'll upload that assignment, and जब भी मैं इसको आपकी Google Classroom में अपलोड करूँ, make sure that you submit that assignment within a week, एक week के अंदर आप उसको submit करें, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी assignment नहीं दिया है। This is the first assignment that I'm giving, so please make sure that you submit that assignment on time. Okay? जी 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 बोलिए। हेलो, तो पहले से 4 असाइनमेंट ड्यू चल रहे हैं। किसके? मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ,
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ रजनीश बोलिए आप। अच्छा, मैसेज के बारे में, ओके फाइन, लेट मी टॉक अबाउट दैट मैसेज। मुझे लगा था कि मुझे बात नहीं करना चाहिए। नाउ इफ यू आर आस्किंग मी, लेट मी टॉक अबाउट दैट मैसेज। ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड यू माइट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम। ठीक है, शायद आप लोग को दिक्कत हो रही होगी असाइनमेंट्स एंड ऑल, बट आप बताइए व्हाट इज दैट कैन बी डन, व्हाट इज दैट कैन बी डन। ठीक है, हाँ आप बताएं। टाइम ड्यूरेशन, ओके फाइन, इफ यू आस्क मी आई गिव यू 10 डेज, देन 10 दिन दे देता हूँ मैं आप लोग को, और क्या कर सकता हूँ। दिस इज द ओनली थिंग दैट हम। मैंने अभी तक एक भी असाइनमेंट, मैंने अभी तक आपको एक भी असाइनमेंट नहीं दिया है। अभी तक मैंने आपको एक भी असाइनमेंट नहीं दिया। किसने दिया है? आई डेंट गिव यू एनी असाइनमेंट। यू टॉक टू दैट कंसर्न फैकल्टी, जो भी है आप उनसे बात करिए फिर, जो भी आपको दिक्कत हो रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, टोटली अंडरस्टैंड दिक्कत हो रही है। ठीक है, द पॉइंट्स दैट वर रिटन इन दिस मैसेज आर, लेट मी राइट रीड दिस मैसेज। आप पूछ रहे तो बता देता हूँ मैं। आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं, आई टोटली एग्री कि बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं,